مچل رہی ہے زر نگار سرخیاں، بڑھے چلو رواں دواں، بڑھے چلو کیا رواں بات ہے، دواں، سبحان اللہ سبحان اللہ. مچل رہی ہے زر نگار سرخیاں، بڑھے چلو بڑھے چلو رواں دواں، بڑھے چلو. تمہارا دل رسول ہے. کیا جملہ آیا ہے. واہ واہ واہ. تمہارا دل رسول ہے، تمہارا ذہن الہ ہے. بس ایک نفس کی دیر ہے، بس ایک قدم کی دیر ہے. رواں دواں بڑھے چلو، رواں دواں بڑھے چلو. آداب ڈاکٹر صاحبہ. عجاب عجاب عجاب. دیکھیے اس وقت بہت اچھا ہے کہ تمام اہل خانہ موجود ہیں، آپ کے سب چاہنے والے. بڑا اچھا رہا، اور جس بیٹی نے ہیلپ کی اس کا بہت شکریہ. تو اس پروگرام کے محرک جو ہیں، اگر کہنا چاہیے صحیح طرح سے، تو وہ جورج صاحب کی روح ہوئی، کیونکہ انہی کا انٹرویو سن کے یہ تحریک پیدا ہوئی کہ کسی صورت آپ سے روبرو بات ہو جائے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم جورج صاحب کے بارے میں بات کریں، اردو ادب، اردو لٹریچر کے بارے میں بات کریں، کیا اچھا ہو کہ آج ان دو مصروں سے شروع کریں کہ زمین و آسماں ہونے سے پہلے جہاں کیا تھا، جہاں ہونے سے پہلے. تو ڈاکٹر صاحبہ اپنے خانوادے کا تعارف دیکھیے. آپ کی کتاب کے فلیپ پہ سید عسکری صاحب کا تذکرہ ہے، آپ کے والد کا. والدہ کا تذکرہ کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے کتابوں میں. تو کچھ تعارف کرائیے اپنے خانوادے کا، والد، والدہ، دادا دادی، نانا نانی تک، تاکہ یہ چیز محفوظ ہو دیکھیے رہی میں ہے. عدیل صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں. وہ دور گزر گیا کہ پدرم سلطان بود. اس لیے میں نے ایک علمی ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی ہے. وہ پورا گھرانہ جو تھا وہ آفتاب صفت تھا. سیاسی، سماجی، تہذیبی، ادبی، ہر طرح کی وہاں پر محفلیں سجتی تھیں. یہ ددھیال ہے، اور ننیال میں فارسی کا چلن تھا. وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے خانوادے کی تھی، اور سسرال کی حد تک وہ راجہ صاحب محمود آباد کا گھرانہ ہے. تو اس لحاظ سے میں نے جو بھی ہے وہ انہی لوگوں سے سیکھا ہے. اور اس کے باوجود مجھے آپ نے جس طرح سے اہمیت دی ہے اس کے لیے بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیے مجھے اپنی کمائیگی کا پوری طریقے سے احساس. آپ نے جس خلوص اور محبت کے ساتھ آج کی اس بس میں مجھے شرکت کی دعوت دی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں. شاید اس لیے کہ محبت کی زبان بہت مختصر ہوتی ہے. صرف ہماری اتنا خوش ہی نصیبی کہنا ڈاکٹر چاہوں گی، صاحبہ. اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے امریکہ کی تیز رفتار اور برق رفتار زندگی میں جہاں انسان کو اپنی صورت دیکھنے کا بھی موقع نہیں مل رہا، وہاں جورج صاحب کی کے لیے ایک دیا جلانا اور دیا جلائے رکھنا، یہ آپ کی پختگی نظر کی علامت بھی ہے، اور جورج صاحب سے آپ کی والہانہ محبت کی دلیل بھی ہے. یہاں عدیل میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ محبت بغیر عرفان کے بت پرستی. صحیح. محبت کے دو پہلو ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو خد و خال سے ہوتی ہے. جیسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے اور چہرے کے اوپر جھریاں نظر آنے لگتی ہیں، اس وقت عشق جو ہے وہ ٹاپوں سے گرد اڑانا شروع کر دیتا ہے. لیکن دوسری محبت یہ ہے کہ جو عرفان ذات و صفات سے مقرر ہوتی ہے. جتنا ہی صفات سے انسان آگاہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنی وہ محبت عقیدت میں بدل جاتی ہے.
لہذا آج جتنے ذی شعور بیدار مغز اور روشن ذہن ہستیاں ہیں وہ جوش صاحب کی عقیدت میں مبتلا ہیں، وہ انہیں محبت کا اخراج، عقیدت بیر وفا کے گلدستے نظر کرنا صرف اعزاز نہیں بلکہ عبادت سمجھتی ہے، اور اسی فریضے کے لیے آپ نے بھی یاد کا انعقاد کیا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ عدیل صاحب اس سلسلے میں جوش صاحب کی حد تک جوش ملیح آبادی سٹی ایک شاعر کا نام نہیں ہے، وہ کسی ادیب کا نام نہیں ہے محض، بلکہ وہ سیاسی، سماجی، تہذیبی، ادبی اور معاشی تغیرات کے آئینے میں فکر و شعور اور جذبے کی صداقت کا سفر ہے جو تسلسل کے ساتھ انسان کے ذہن کو متاثر کر رہا ہے اور ہر عہد کے شعور میں لہو کی طرح گردش کر رہا ہے، اور اپنی بصیرت سے وہ کروڑوں بصیرت کے چراغ فضا میں جلا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ جی آپ جی اب بتائیے آپ کی کتاب کا جو جہاں مقدمہ آپ نے شروع کیا اور پہلا جملہ ہے کہ جہل کے اس بلبلاتے ہوئے صحرا میں جہاں چاندنی کی ٹھنڈک، باد صبا کی تازگی اور محبوبہ کی اداؤں پر پابندی لگانے کی کوششیں جاری ہوں، دارالکتاب کی جگہ دارالکباب کو فروغ دیا جا رہا ہو، سنگین تاریخی انسانوں کو لہو کا غسل دے رہی ہو، ماں اکیلی جاگ رہی ہو، جوان بیٹے سو رہے ہوں، ایسے کربناک ماحول میں سوال یہ ہے کہ حضرت جوش ملیح آبادی پر کتاب لکھنے کا جواز کیوں کر پیدا ہوتا ہے؟ یہ سوال آپ نے خود لکھا اور آج ہم چاہیں گے کہ آپ ہی کی زبانی، جواب تو کتاب میں اس کا بہت مکمل ہے، آپ فرمائیے مختصراً کہ یہ ایک تحریک کیسے پیدا ہوئی کہ آپ جوش صاحب کے اوپر اتنی تفصیل سے ایک کتاب جو ہے وہ سامنے لے کے آئے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے عدیل آپ نے۔ دیکھیے ایک عرصہ دراز سے جوش صاحب پر یہ چاروں طرف سے ایک بارش ہوئی ہے، ارے جناب جوش کیا ہے، وہ تو صرف الفاظ کے شاعر ہیں، الفاظ کے جادوگر ہیں، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ وہ یہ کوشش جاری تھی کہ فکر کا کوئی عنصر جوش کی شاعری میں نہیں ہے، وہ صرف الفاظ کے شاعر ہیں اور الفاظ یا کاغذی ہیں، اور اس کے بعد آپ اس سے نتیجہ نکال لیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ فکر تھی جو پورے معاشرے میں یہاں سے وہاں تک سوال در سوال پیدا کر رہی تھی۔ جی ہاں جوش صاحب کیا چیز، کچھ نہیں، ارے بھائی وہ تو بس صرف ایک ہی چیز ہے ان کے پاس، وہ ہے الفاظ۔ جی نہیں، اس پہلو کو، اس جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، اس کا جواب دینے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ غلط ہے، جوش ایک احساس شاعر نہیں ہے بلکہ وہ مفسر ہے، وہ مفکر ہے، وہ مجتہد ہے، اور بڑے شاعر کی طرح ان کی فکر جو ہے وہ کروڑوں انسانی جدوجہد کے مرزوں کا عطر ہے، وہ انسان کے ذہن کی لو ہے، فکر کی جگمگاہٹ ہے، کردار کی پاکیزگی کا دوسرا نام ان کی شاعری۔ یہ ہے وہ کتاب کا موضوع کہ جس کو جو لوگوں نے شروع کیا تھا الفاظ اس کو رد کرنے کے لیے کتاب لکھی۔ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے، جوش صاحب نے خود کہا کہ ہر سانس میں کوثر کے پیام آتے ہیں،
ہر گام پہ حوروں کے خیام آتے ہیں، بندوں سے جو ایک بار ملتا ہوں گلے، اللہ کے 100 بار سلام آتے ہیں۔ اور وہ آپ کا ہی انٹرویو ہے، کم از کم 100-150 دفعہ سنا، اور بڑی خواہش تھی کہ آپ سے روبرو ملاقات ہو، جس کا اللہ نے آج موقع دیا۔ اور اس میں ہماری نشاط بی بی کا بہت ایک اہم سلسلہ رہا، ان کے بے انتہا مشکور ہیں، ممنون ہیں۔ تو جوش صاحب کا جو پیغام ہے وہ ایک آفاقی ہے، وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھا، ایک پوری انسانیت کے لیے تھا۔ تو کیا فرمائیے گا، کیا ہم لوگوں نے محدود نہیں کر دیا؟ عدیل، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ کا یہ پروگرام جو ہے وہ نئی نسل تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو جوش صاحب کی فکر کے جو پہلو ہیں ان کو آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ پہلی بات، جوش صاحب اپنی فکر کی بنیاد عقل پر رکھتے ہیں، اور عقل یہ اس دور میں وجدان کی پوری کیفیت یہاں سے وہاں تک جاری و ساری تھی۔ جوش اس وجدان کے فلسفے کو رد کر رہے، اور اب جتنے فتویٰ گر ہیں وہ جوش کے اوپر الزامات کی بارش کر رہے ہیں، جس کا اظہار انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے، آپ سنیے۔ جی فرمائیے۔ اس جرم میں کہ داعیے تطہیر عقل ہوں، اس جرم میں کہ داعیے تطہیر عقل ہوں، تشنیع کا نشانہ بنایا گیا ہوں میں۔ اس جرم میں کہ عشق کو کہتا ہوں ذوف عقل، اس جرم میں کہ عشق کو کہتا ہوں جوش عقل، میں خانقاہ دریدہ و مسجد گزیدہ ہوں۔ ان کی فکر کو پوری طریقے سے مسمار کرنے کی کوششیں کی گئی۔ ایک بات دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ان کی فکر کے ایک دو نہیں سینکڑوں پہلو ہیں، اور ہر پہلو میں ایک ابدی تازگی، ایک ابدی چمک، ایک ابدی دمک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جناب اب یہ پوری فکر چل رہی ہے پورے معاشرے میں، جناب انقلاب جو ہے وہ اندرونی چیز ہے، باہر سے نہیں آتا۔ ایک بات جی نہیں، انقلاب کے لیے صرف وجدان کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت، یہ پوری مکمل طریقے پر ایک کوشش یہاں سے وہاں تک کی جا رہی تھی کہ جوش کو کی فکر کو رد کیا جائے۔ جوش صاحب نے اپنی فکر کی بنیاد ٹھوس مادی ذرائع اور مادی حالات پر رکھی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جب تک کہ مادی حالات تبدیل نہیں ہوتے ہیں اس وقت نہ آزادی آ سکتی ہے، نہ جمہوریت آ سکتی ہے، نہ انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ پوری فکر ہے جو تاریخ کے وہ حوالے کر رہے تھے، اور اسی فکر کے نتیجے میں دیکھیے وہ کہاں پہنچا دیتے ہیں آپ کو۔ کہتے ہیں سوچتا جاتا ہے کن آنکھوں سے دیکھا جائے گا، سوچتا جاتا ہے کن آنکھوں سے دیکھا جائے گا، بے ردا بیوی کا سر بچوں کا منہ اترا ہوا، گھر میں نانو نمک کا وہ غذا کچھ بھی نہیں، گھر میں خاموش ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پورا معاشرہ جو ایک طرف روشنی ہے، تین طرف اندھیرا ہے، اس روشنی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، مگر دیکھیے اب دوسری سمت وہ لے جا رہے ہیں۔ سوالات کرنے دیجیے، وہ سوال کریں تو آپ اور دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارتقاء کا پیشوا تہذیب کا پروردگار، ارتقاء کون ہے؟ یہ سما اور قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا تہذیب کا پروردگار۔ چین کے انقلاب کی طرف یہ نگاہ جا رہی ہے، جوش صاحب کی مستقبل گیردانی دیکھ رہی تھی۔ عزیز صاحب اس کے اوپر آپ غور کریں۔ بالکل بالکل ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ کے بہت ہی پسندیدہ 4 مصرے ہیں جوش صاحب کے، کہ
आदमी को जो ग़िज़ा देता नहीं, इदराक की उम्मतों का मुक्तदा बनता नहीं वो आदमी। वाह वाह वाह। किबला गाह उस शख्स को इंसान बना सकता नहीं जो बशर की फिक्र को जो आगे बशर बढ़ा की सकता फिक्र नहीं। को आगे बढ़ा सकता नहीं। आपसे इत्तफाक है, बिल्कुल इत्तफाक है। और आपने जो इंटरव्यू किया 1980 में जोश साहब का, उसमें वो जहतें उनकी सामने आई, और एक कमाल का इंटरव्यू है, क्योंकि उसमें जिस तरह आपने जोश साहब को चैलेंज किया, उनसे सवाल किए, और उनके जवाबात जो हैं उनके ना चाहते हुए भी आपने उनसे कहलवाए, और वो आप ही का हिस्सा है। बहुत ही उम्दा गुफ्तगू है। और उसमें एक पहलू उनका ये था कि उन्होंने कहा कि ये शायर इनकलाब मुझे कहना जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगता, शायर इंसानियत कहा जाए मुझे, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं, रहेगा। क्या फरमाइएगा जब आप इस पर अदील, आप क्या इस पर गुफ्तगू करना पसंद करेंगे? क्यों बिल्कुल। कहा गया उन्हें? देखिए, उर्दू अदब में सबसे पहले इनकलाब का लफ्ज इकबाल ने इस्तेमाल किया है, ये हकीकत। लेकिन इकबाल की फिक्र जो है वो मुतज़ल्ज़ल है। जोश साहब जो हैं जबदरगीर और मुहक्कम गीर, वो उनके यहाँ एक मरतबा उन्होंने एक नजरिए हयात को अपना लिया है, वो है ठोस मादी नजरिया हयात। उसके ऊपर वो सर से पैर तक जमे हुए हैं। अब जब वो उसके ऊपर हैं तो जितने भी लोग हैं जो तरक्की पसंद हैं, जो फिक्र रखते हैं, उन्होंने जोश को इनकलाब का शायर, इनकलाब है, इंसानियत की इसकी बहस तो कभी और आपसे करेंगे, इंसानियत अलग लफ्ज है। इनकलाब का शायर इसीलिए उन्हें कहा गया कि सबसे पहली बुनियादी बात जो जोश साहब के यहाँ ताबनाक अंदाज से आती है वो साम्राज्य दुश्मनी है। साम्राज्य दुश्मनी में जोश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ढूंढते लूटते फिरते थे जब तुम कारवां दर कारवां, सर बरहना फिर रही थी दौलते हिंदुस्तान। तुमने कैसर बाग को देखा तो होगा बारहा, हमारी भी कोठी वहां पर है। तुमने कैसर बाग को देखा तो होगा बारहा, आज भी आती है जिससे हाय अख्तर की सदा। देखिए कहाँ ले जा रहे हैं। ये आजादी की तहरीक को जिस तरह मस्मार कर रहे हैं अंग्रेज, उसकी तरफ वो साम्राज्य। मगर अगर आप इजाजत दें तो मैं एक पहलू और आपके सामने पेश करूं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आप ही को सुनने के लिए सब जमा हुए हैं। देखिए, ये सौदागराने वक्त को तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में खिताब कर दिया, मगर इससे पहले कि मैं साम्राज्य दुश्मनी की बात करूं, एक पहलू उनकी फिक्र का रहा जाता है, वो है मोहब्बत। जी, उन्होंने इब्तिदा में भी कहा है, और उनका कहना ये था कि जनाब मोहब्बत जो है, अगर मोहब्बत से बेजारी है, जिंदगी से बेजारी। लिहाजा अब उनका शेर सुनिए आप। हर एक कांटे में सुर्ख किरणें, हर एक कली में चिराग रोशन। हर एक कांटे में सुर्ख किरणें, हर एक कली में चिराग रोशन। चिराग ख्याल में मुस्कुराने वाले तेरा तबस्सुम कहाँ नहीं, ख्याल में मुस्कुराने वाले तेरा तबस्सुम कहाँ नहीं है। ये उस माशरे में है जहाँ मोहब्बत आप गलियों से निकलने पर, तारीख गलियों से निकलने पर मजबूर है। ये वहां पर ये जोश इनकलाबी फिक्र लेकर आ रहे हैं। अब आप आइए साम्राज्य की तरफ। पहले सौदागराने वक्त को उन्होंने चैलेंज कर दिया, उसके बाद अब ये कहा जा सकता था कि खैर वो आजादी की रौ में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों से खिताब किया है। लेकिन आज जो हो रहा है, क्या जोश की नजर वहां थी? अब ये है सवाल। अदील, बिल्कुल थी डॉक्टर सवाल साहब। ये है जी कि जी, मौजूदा अहद में जोश कहाँ पर आपको लेके जा रहे हैं। उसका सवाल ये है कि जोश की मुस्तकबिल गिर निगाह
देख रही थी कि साम्राज्य का मुकद्दर सिर्फ जंग है, जंगी जुनून पैदा करना है, इंसानों को वो धान और तेल की तरह बिकाऊ माल समझकर जंग के ईंधन में झोंक रहा। फलस्तीन मौजूद है, सीरिया मौजूद है, यूथोपिया है, लेबनान है, सब जगह लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं। ये क्यों है ऐसा? इसकी तरफ जोश ने बहुत खूबसूरती से वो पढ़ने और सुनने से ताल्लुक रखता है कि उन्होंने कहा कि देखो, जितने ग्लोबल विलेज का नाम दिया जा रहा है, ये ग्लोबल विलेज क्या है? ये ग्लोबल विलेज जितने बड़े सरमायादार ममालिक हैं उनका एक ग्रोह है जो कमजोर ममालिक के रिसोर्सेस पर अपनी हेजेमनी कायम करने के लिए कायम किया गया ताकि उनके जहनों को वो असीर कर ले। उसमें चारों तरफ लाशें हैं और एक तरफ माँ खड़ी रो रही है। उसका नक्शा देखिए क्या किस तरह खींचते हैं। इरशाद कहते हैं, देवे अजल की अंगनाई में ताक धनाधन लाशें रक्षा। वाह, देवे देवे अजल की अंगनाई में ताक धनाधन लाशें रक्षा। अंधे पगले खूनी वैशी नारा जना और बस खरामा। अंधे पगले खूनी वैशी नारा जना और मस्त खरामा। खौफ में डूबे सारे पूछे, खून में डूबी सारी गलियां। खौफ में डूबे सारे पूछे, खौफ में खून में डूबी सारी गलियां। गोली चलती होली जलती सीने फूकते सीमी बरियां। ताक धनाधन लाशें रक्षा, ताक धनाधन लाशें रक्षा। जोश 20वीं सदी से लेकर 21वीं सदी में इस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं इसको, साम्राज्य को, कि तुमने जो ये ग्लोबल विलेज का एक ड्रामा नचाया है उसके पीछे क्या है, उसके अंदर से कितनी लहू की नहरें हैं जो बह रही हैं। अब आप एक और सवाल कीजिए मुझसे। डॉक्टर साहबा, क्या है? बिल्कुल आपसे इत्तफाक है। जोश साहब की एक नज्म है बनामे कुव्वतो हयात, हाँ, और उसके आखिर में 2 शेर हैं जो कि जिस मौजू पे आप बात करें, जोश साहब की फिक्र कि बशर के जहन पे कर्नों से जो मुसल्लत हैं, बदल रहा हूं गुमानों में उन यकीनों को। कल उनकी नस्ल का ए जोश में बनूंगा इमाम, खबर करो मेरे मसलक के नुक्ता चीनों को। वाह, तो वाह वाह वाह। तो ये जोश साहब को मालूम था, जोश साहब को मालूम था जो करना चाह रहे थे और जिस तरफ वो जहन इंसानी को लेके जाना चाह रहे थे। लेकिन आप ये फरमाइए कि ये जोश साहब का जो पैगाम है और इस कदर भरपूर पैगाम नौ इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, इसमें उनकी हिजरत जो है उससे क्या रुकावटें पैदा हुई और हालात जो हैं आखिर में। देखिए, जोश साहब जो हैं वो हमारे निसाब में एक मिसाल दे रहे हैं कि निसाब में जोश साहब को होना चाहिए, और ऐसे ऐसे लोग निसाब में हैं बिल्कुल सही है जिन्हें शायद निसाब की सही डेफिनेशन भी ना मालूम हो। हाँ हाँ। तो आप फरमाइए इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही और बरवक्त सवाल है। ये साम्राज्य का पूरा नक्शा जोश ने अपनी शायरी में खींच दिया है। अब इससे निकलने का रास्ता क्या है, ये इसकी तरफ आप चाहते हैं कि इशारे मिल जाएं। उसके लिए जोश साहब ने अम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आपने शायद यादों की बारात में पढ़ा होगा कि अम क्या है, उसकी तफसील उन्होंने किस खूबसूरती से बयान किया। कहते हैं कि एक ऐसे माशरे में ये उनके अल्फाज हैं, खरद बेजार माहौल में जहां जहल नारा जना और मस्त खरामा है और दानिश्वरी सर बरहना है, वहां अम की बात करना
जहल के रेगजार में इल्म की जोत जगाना है और दहकते हुए अंगारों में कदम रखकर सच्चाई और अम के फूल खिलाना, ये उनके अल्फाज। उसके बाद वो कहते हैं कि ये भी समझना चाहिए कि अम का लफ्ज मुजर्रद नहीं है। अम का लफ्ज पीस इज नॉट इन आइसोलेशन, it is very much related to the just socio-economic order. Unless until you have a social economic order, you can't think of having peace on the face of the earth. उसकी तफसील बता रहे हैं। सही। और तफसील ये बता रहे हैं कि एक ऐसे माशरे में जहाँ एक तरफ कहे उबलते हुए ऐवान है, तीन तरफ ना तरशीदा आरज़ुएं हैं, ना दमीदा हसरतें हैं, तपते हुए बदन है, शकिस्ता कमर है, टूटे हुए शाने है, वहां आप अम की बात करते हैं। इसलिए कहते हैं याद रखो, अम उस जगह नहीं आ सकता है जहाँ ना बराबरी का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ना बराबरी के निजाम में अम नहीं कायम हो सकता जब तक के आप उसी निजाम में हयात को, उसकी आईनी मैयत को दफना कर फिर आप अम का परचम बुलंद करते हैं। और इसके लिए उनकी निगाह जो मुस्तकबिल की निगाह है, जो कायनात की निगाह है, वो ये देख रही है और बहुत खूबसूरती से कह रहे हैं, मचल रही है जर निगार सॉरी मचल रही है जर निगार सुर्खियां, बढ़े चलो रवा दवा, बढ़े चलो रवा दवा, मचल रही है जर निगार सुर्खियां, बढ़े चलो रवा दवा, बढ़े चलो, तुम्हारा दिल रसूल है। क्या जुमला आया है, तुम्हारा दिल रसूल है, तुम्हारा जहन इलाह है, बस एक नफस की देर है, बस एक कदम की देर है, रवा दवा बढ़े चलो, रवा दवा बढ़े चलो, मचल रही है जर निगार सुर्खियां, बढ़े चलो। और ये किस वक्त कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि देखो जब हुकूमतें हुदूद इख्तिदार में अपनी सारी ताकत के साथ आगे बढ़ती हैं, पीछे हटती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन लहू 100 शक्लें बदल कर उभरता है। कहीं नारा बनता है, कहीं पत्थर बनता है, कि एहतजाज बनता है, कहीं इनकलाब बन जाए। और इनकलाब फ्रांस है, इनकलाब रूस है, इनकलाब चीन है, इनकलाब ईरान है, इसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि कोई वजह नहीं है कि हमारे मुल्क में भी ये सुर्ख मचल रही है, मचल रही है जरनिगार सुर्खियां, बढ़े चलो रवा दवा, बढ़े चलो जी। और डॉक्टर साहिबा, हम चाहेंगे कि निशात साहिबा जो हैं वो आपको एक थोड़ा सा पानी दे दें, और इस दौरान हम आपने जो कुछ फरमाया, जोश साहब की एक नज्म है रहजनी या रहबरी, उसके 4 शेर आप तक पहुंचा देते हैं तमाम हमारे जो नाजरीन हैं। ये इत्तफाक है, कोशिश है हमारी कि आपके ख्यालात जो हैं और जो आपकी फिक्र है और जो आप पहुंचा रही हैं, जोश साहब उस बारे में क्या कह गए हैं। तो उन्होंने कहा कि समझ में आएगा एक उम्र के बाद मैं जो कुछ हमशी समझा रहा हूँ, और यही आप आज समझा रही हैं हमारी आने वाली नस्लों को, जो आपका पैगाम है। जो साहब ने फरमाया कि समझ में आएगा एक उम्र के बाद मैं जो कुछ हम नशी समझा रहा हूँ, न जा इन कुफ्र की बातों पे मेरी, ये हक के गीत हैं जो गा रहा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बशक्ले रहजनी हर काफले को हकीकी रास्ते बतला रहा हूँ। हाँ, तफक्कुर छा रहा है मुझ पे जितना, मैं उतना जिंदगी पर छा रहा हूँ। जिसे यूं खो रहा हूँ हर कदम पर, उसी को हर नफस में पा रहा हूँ। बड़ी बड़ी एक खूबसूरत नज्म है। और अभी हमें एक मैसेज मिला कि सईद नकवी साहब शामिल हैं हमारे साथ इस महफिल में। तो सईद साहब, डॉक्टर साहिबा से अगर कोई सवाल करना चाहें, या आप जोश साहब के का कुछ अशार नज्म का कुछ हिस्सा
पहुंचाना चाहें ताकि डॉक्टर साहिबा को थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक भी मिले और आप महफिल में शामिल हो जाएं? सईद नकवी साहब, अगर आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। हमारे ख्याल में हैं सईद नकवी साहब मौजूद। फिर से कोशिश करें। जी, ये सईद नकवी साहब देखिए, अनम्यूट अगर आप कर सकें अपने आप को। जी, हो गए, बिल्कुल आवाज आई? आवाज आई। आदाब। हमारी खाला, जिनको कि मैं आंट अगधा कहता हूँ, जो कुछ मैंने सीखा है वो इनसे, इनके भाई और इनकी बड़ी बहन, उनमें से खास तौर से ये मेरी तालीम में मुझको कहाँ से कहाँ ये ले गई, कहाँ का मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत जो कुछ मैं हूँ उसमें इनका बहुत, लेकिन कुछ अशार जोश साहब के ये नहीं पढ़ती, वो अगर इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं। इरशाद इरशाद। ऐ दोस्त, ये कभी कभी नाराज हो जाती हैं। ए दोस्त, दिल में गर्दे कदूरत न चाहिए। ऐ दोस्त, दिल पे गर्दे कदूरत न चाहिए। जी जी जी। बुरों से भी वहशत नफरत न चाहिए। कहता है कौन फूल से रगबत न चाहिए। कांटों से भी मगर तुझे वहशत न चाहिए। कांटे की रग में भी है लहू सब्जाजार का। वाह वाह, पाला हुआ है नसीम वो भी बहार का। नसीम बहार का। वाह 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 वाह। कहते हैं कि भाई बदले की रस्म जिनसे वफा में हराम हमें है। हराम है। बदले की रस्म जिनसे वफा में हराम है। एहसान एक शरीफ तरीन इंतकाम है। वाह 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 वाह। एहसान एक शरीफ। और फिर अब जोश की बात हो रही है, मैं अदना अपनी खाला के बीच में कहाँ और आपके बीच में कहाँ मुखिल हूँ, वरना जोश वैसे, जोश ने हम लोगों को, जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं, वहां को मोल्ड किया जोश ने और जोशियत ने। तो लिहाजा ये मुझे बातें आपकी सुन के ऐसा लग रहा है मुझे अपना बचपना याद आ रहा है। नहीं, बड़ी बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है। और देखिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है और एडिटिंग में शायद कुछ वक्त और लग जाए, तो पूरा तो नहीं, पूरी रुबाई नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ेंगे कि शब्बीर हसन खान नहीं लेते बदला। सुना रुबाई? जी डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ चलते हैं वापस। हमने कहा बस बात एहसान की सईद साहब ने कि एहसान ही शरीफ तरीन इंतकाम है, तो हमने कहा एक मिसरा जोर साहब का दोहरा दें। शब्बीर हसन खान नहीं लेते बदला, अगला मिसरा छोड़े देते हैं। ये बदला नहीं, बदले की रस्म जिनसे वफा में हराम है। वाह। बदले की रस्म जिनसे वफा में हराम है। एहसान एक शरीफ तरीन इंतकाम है। ये पूरी इंसानियत को उन्होंने पैगाम दे दिया। मैं आखिर में आपकी तवज्जो खास मौजू की तरफ दिलाना चाहती हूँ। वो है कि उन्होंने यहाँ और इनकलाबी तमाम यहाँ से वहाँ तक हर पहलू में इनकलाब देखा है। इसी तरीके से उन्होंने मजहब में भी इनकलाब बर्पा किया है। मजहबी जो रवायात हैं जिनसे कि दुनिया परेशान है, वो असली
असली मकसद क्या था, मसलक क्या था, मतबा नजर क्या था, नजरिया हयात क्या था, इसकी तरफ उन्होंने इशारे किए हैं। कहते हैं आपने तो पढ़ा है और हमारे जितने भी मेरे आपके साथी मौजूद हैं जो दिशहूर हैं, बेदार मग़ज़ हैं, रोशन ज़हन हैं, उनके सामने मैं मेरा ज़्यादा लब कुशाई करना फूलों पर इत्र बनने के मुतरादिफ है। तो कितना सही नकवी अहमद साहब खुद बहुत बड़े दानिश्वर हैं, अदीब हैं और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो अनोखी फिक्र था और एक नया पैगाम था। उस हकीमे नुक्ता परवर का क्या बात है सर? उस हकीमे नुक्ता परवर का मोहम्मद नाम। सुभान और अल्लाह, फिर सुभान अल्लाह डॉक्टर साहबा। करबला को जिस तरीके करबला रसूल करीम की फिक्र का नुक्ता उरूज है। कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, कोई या आज के लिए उन्होंने ये शेर लिखा है, कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। जो हुकूमतें के शाही को सहारा देती हैं वो तौहीन रिसालत करती हैं, वो तौहीन कुरान करती हैं। ये है वो पैगाम जो साहब तारीख के हवाले कर रहे हैं। और आखिर में अगर आप इजाजत दें तो मैं इतनी बात और करती चलूं कि देखिए आप कितने ही बड़े शायर हों, अदीब हों, दानिश्वर हों, सियासतदां हों, साइंटिस्ट हों, सब कुछ हो, लेकिन अगर आप खूबसूरत इंसान नहीं है तो कुछ नहीं। क्या अच्छी बात, क्या अच्छी बात है डॉक्टर साहब। लेकिन अभी आखिर नहीं आया प्रोग्राम का। गुल जाफरी साहबा जो हैं वो कुछ बात करना चाहती हैं। अच्छा, हम चाहेंगे कि वो अनम्यूट करें। और अभी आपसे 2 सवाल और हैं हमारे आखिर में डॉक्टर साहबा, अगर इजाजत हो। ठीक है, ठीक है। जी 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 गुल साहबा, मैं अनम्यूट हो गई हूँ ना? जी आप बिल्कुल हो गई। जी आदाब अदील साहब, थैंक यू सो मच। इनफॉर्मली मैं ये कहूँगी कि हम पाकिस्तानी तमाम खानदान जो आलिया खाला के साथ, अल्लो बिया के साथ आशना हुआ है बहुत, और अदब से और कल्चर से और फ़नून लतीफ़ा से और चीज़ों से, जोश साहब की इंटिमेसी और ऐसे जैसे हमारे घर के मेंबर हैं वो अल्लो बिया के साथ साथ उंगली पकड़ के हम सब, तो वो तो एक पूरा एक बहुत लंबा सफर है। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी, और जितने लोग सुन रहे हैं कि हमारे जो ये बता रही हैं, वी एज कॉलेज स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान पैशनेटली, और यहाँ पे माओ फातिमा जाफरी बैठी हुई हैं, सैयद मोहम्मद जाफरी की भांजी, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े घराने से हैं, और बहुत क्रेजीली पैशनेटली जोशाइट्स इन्हें हम कहते थे, इनकी फैमिली को। तो मैं बता रही हूँ आपको, 2 साल पहले प्री कोविड, जस्ट 2 months बिफोर मार्च कोविड, अदबी कॉन्फ्रेंस होती है एनुअल कराची में, उसमें एक सेशन 12 साल से यहाँ पे कराची लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, कराची के 4 अदबी फेस्टिवल्स हैं, नॉट वन सेशन ऑन जोश मलिहाबादी। There is such an obsessive resistance to not honoring a session for Josh in the entire Adabi conference in Karachi. 2 years ago, अल्लो बिया को लेकर, अल्लो बिया ने मुझे गाइड किया, I spearheaded a session on जोश साहब, जिसके लिए बहुत एहसानमंद है। अदील साहब आप कराची के हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह ने हमें बड़ा ऑडिटोरियम दिया कि चलिए, आप गुल कितने सालों से कह रही थी जोश साहब का होगा, इतना बेहतरीन प्रोग्राम। वी मेड अ वीडियो ऑफ जोश's ओन रेसिटेशन, बहुत अच्छे सब पढ़ने वाले, पुराने हिलाल नकवी साहब बीमार थे, लेकिन हम चुनिंदा लोगों का अल्लो बिया ने सदारत की, आलिया खाला ने, it was not included in the entire edited video of the small video of that. So
آپ کا جب ہم نے سنا تھوڑے 1 مہینے 1.5 مہینے پہلے آؤٹ آف دا بلو, اور میں نے ابھی امریکہ کے بھی لوگ کچھ سن رہے ہوں گے, میرے دوست یا آپ کا ایڈیٹڈ ورژن سنیں گے, تو وی ور سو ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. سو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک طرح کا یہ ہمارا خاندانی ایک بہت کنیکشن ہے, نانا جان سے لے کر جوش صاحب کا واقعات تو ہیں بھرے ہوئے. تو میں اپنی ایک بالکل عوامی سی جو ان کے, عوامی تو نہیں کہنا چاہیے, ہم لوگ جو پڑھتے تھے, غنچہ تیری زندگی پہ, غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے, کھلتا ہے, بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے, غنچے نے کہا اس چمن میں بابا یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے. جی 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 جی. تو ہم لوگ اس کو پڑھتے پڑھتے جوان ہوئے, اور تھینک یو سو مچ یہ محفل سجائی. اور مجھے بڑا قلق ہے کہ یہاں پہ اطہر عباس اور مجھے انور عباس نہیں نظر آ رہے ہیں پارٹیسپینٹس میں. میں نے ان کو بھیجا تھا, ان کے پاس بھی پورا بیان وہ ہے, وہ بڑا اچھا ہوا کہ آپ شامل ہوئیں اور آپ نے جو اپنے کامنٹس ایڈ کی. میں چاہوں گا باقی فیملی ممبرز بھی اگر کچھ کہنا چاہیں, لیکن گل صاحبہ دیکھیے جو آپ نے واقعہ بھی بتایا اس میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ سورہ منافقین جو ہے وہ اپنوں ہی کے لیے آئی تھی, غیروں کے لیے نہیں آئی تھی. ویل سیڈ. تو کیا ہے یہ, کیا افتخار عارف ہوں, چاہے فاطمہ حسن ہوں, چاہے اتنے لوگ ہیں, لیکن وہ ادھر ٹال اقبال فیض, فیض اقبال, اقبال فیض, فیض اقبال, اس سے مشکل سے آگے بڑھتے ہیں تو غالب آ جاتے ہیں. بٹ somehow there is such a strong resistance. You are doing a commendable job. That's all I can say. جوش صاحب, thank you so much. جوش صاحب کو سننے کا موقع 10 برس کی عمر سے ملا. ہمارے والد پروفیسر اختر رضا زیدی جو ہیں وہ جو کچھ تھوڑا بہت بولنا اٹھنا بیٹھنا سیکھا, اور آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں آج, سب انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے یہ. تو جوش صاحب کے ساتھ ایک انسیت رغبت جو ہے, اور جوش صاحب کہ یہاں جو توانائی ہے, ان کے پیغام میں جو توانائی ہے, ان کا جو ان کی فکر, ان کا پیغام جو ہے وہ تو ایک آفاقی پیغام ہے. ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں, اور منافقت نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے اگر کوئی سوال ہیں کسی اور طرف سے تو گل صاحبہ فرمائیے کن کی طرف چلنا چاہیے اس آپ کے پیغام کے بعد. Mao, would you like to read or say something about your family? Mao, you're there? I believe. Mao, کہاں ہیں آپ؟ دیکھیے اس محفل کا انعقاد ہو نہیں سکتا تھا بغیر Javed should say something. Javed can say a lot, I guess. نشاد کہاں ہیں؟ نشاد صاحبہ تھیں یہاں پہ اور اس وقت اب نظر نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحبہ اتنے یہ فیصلہ ہو کہ فیملی میں سے کون آ سکتا ہے, آپ فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ اس منافقت کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ کس بارے میں؟ جوش صاحب کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا. دیکھیے عدیل, یہ اب میں نام نہیں لیتی ہوں, لیکن ایک بہت بڑے فلاسفر کا قول ہے کہ بہت بڑی شخصیت جب ہوتی ہے اور چھوٹے لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں تو اس شخصیت کو اپنے لیول کے اوپر لے آتے ہیں اور پھر اپنے ہی پیمانے سے اس کو ناپنے لگتے ہیں. بالکل یہ ہے اس کا جواب. اس کا جواب میں اپنی سطح سے اس کو ناپنا شروع کرتے ہیں, لیکن پھر وقت کے گزرنے کے بعد جیسے ہی یہ حسن بڑھتا جاتا ہے, شعور بڑھتا جاتا ہے, علم بڑھتا جاتا ہے, پھر وہ سارے دریچے کھلنے لگتے ہیں. غالب کی کل کیا حیثیت تھی؟ پھرتا ہے, بنا ہے شے کا مصاحب, پھرے ہے اترا کا,
مگر نہ شہر میں غالب کیا ابرو کیا ہے. جی لیکن جی آج آپ نے دیکھا کہ کہاں ہے اقارب. تو یہ وقت کے ساتھ جیسے ہی شعور بڑھتا جاتا ہے وہ دریچے کھلتے جاتے ہیں اور انسان اس کے جوہر سے آشنا ہوتا چلا جاتا ہے. تو جوش انسان کو بیدار تو ہو لینے دو کی منزل پر سارے مسائل حل ہوتے ہیں. بیداری ہے. دیکھیے جوش صاحب کے 2 بڑے طویل پروگرام ہوئے جس میں انڈیا کے بھی دانشور شامل رہے. آپ کو لنک بھیجا ہے, جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کا انٹرویو جو ہے یہ آج کیونکہ فیملی ممبرز ہیں, یہ عرض کر دیں کہ ڈاکٹر آفاق حیدر, ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ نے جو انٹرویو جوش صاحب کا کیا تقریباً 3.5 گھنٹے کا ہے. اس کا ایک ایڈیٹڈ ورژن ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پبلک کنسمپشن کے لیے ریختہ سے ریلیز ہوا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ریختہ کے تمام ممبران کا جو میرے ساتھ شامل رہے اس میں, اور دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے بہت ایک بڑی تعداد میں وہ انٹرویو ڈاکٹر صاحبہ کا. ہمارے خیال میں سعید نقوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. وہ اس وقت کہہ رہا تھا جب جی کہ فرمائیے. جوش صاحب کو نیچے کھینچنے کی باقاعدہ جو کوشش ہو رہی تھی اور جس طرف ان کا اشارہ تھا ہماری خالہ کا, وہ میر تقی میر کے ایک شعر میں اس کی جھلک ملتی ہے. سنا سب خار ازاں جملہ ہوں میں بھی, ہے عیب بڑا اس میں جسے کچھ ہنر آوے. واہ 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 واہ, کیا شک ہے صاحب, کیا شک ہے اس میں. ڈاکٹر صاحبہ سوال کی طرف چلتے ہیں اور یہ اوپن فورم ہے, اگر کوئی انمیوٹ کر کے بات کرنا چاہیں پلیز انٹرپٹ کر سکتے ہیں آپ. ڈاکٹر صاحبہ ایک جگہ یہ فلیپ پہ آپ کی کتاب پہ جوش صاحب نے لکھا کہ جب آپ نے ایم اے کیا اور پی ایچ ڈی کیا تو حالات جو تھے ناسازگار تھے. کن حالات کی طرف ان کا اشارہ تھا آپ کی؟ بھئی اشارہ ان کا یہ ہے کہ ہم نے 3-4 سطحوں پر کام کیا ہے, ایک معلم کی حیثیت سے, اور دوسرا ادیب کی حیثیت سے, تیسرا ایک سمجھیے جو صاحب نے اس کا نام مجاہدہ کہا تھا, تو میں نے اسٹرگل میں بہت حصہ لیا ہے. اس اسٹرگل کی طرف I was forced to leave Pakistan within 24 hours. ہمیں پاکستان سے نکال دیا گیا تھا, اور اس کی طرف جوش صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ یہ اتنی بڑی ادیبہ اور یہ اور وہ, اور اس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا. یہ ہے وہ اشارہ جو وہ کرنا چاہتے کہ ہنر دشمن ملک ہے یہ. تو کچھ فرمائیے کہ کس طرح یہ ان حالات سے آپ نکلیں. اور دیکھیے میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ ایک تنہا انسان بھی سچائی اور امن اور محبت کی آواز بلند کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے, کیونکہ اس کا انحصار قوت اور طاقت اور میزائل شکن توپوں پر نہیں ہوتا ہے, یہ فوجی پریڈ دکھانے پر, اس کی روک ڈالنے پر نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کا انحصار ادراک اور آگہی پر ہوتا ہے. اور آپ کتنے اپنے نظریے میں کمیٹڈ ہیں یہ اس پر ہوتا ہے. اگر آپ کا پوری طریقے سے انحصار ادراک اور آگہی پر ہے اور آپ باخبر ہیں تو آپ لازمی طور سے اس کے خلاف آواز بلند کریں گے. لہذا ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کی, اور ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے, بلکہ میں اپنے آپ کو سرخرو پاتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ پہلی کتاب کون سی لکھی آپ نے, پہلی جو آپ کی پبلیکیشن تھی؟ دیکھیے ایک تو ہے پہلی کتاب جو ہے وہ ہے میرے میموائرز ہیں, شاخ ہری اور پیلے پھول, جس میں پورے خاندان کے حالات ہیں, سسرال کے
اور मैके के और बच्चों के सबके पूरे हालात है वो किताब, शाख हरी और पीले फूल। इसके बाद लगातार, चूंकि क्या बताऊं, मेरे शौहर ने बिल्कुल फूलों की सेज पर रखा और कहा तुम लिखती रहो, स्टेज पर जाती रहो, दूसरा कोई काम नहीं करना। तो मैं लगातार किताबें पर किताबें लिखती चली गई, जो 27-28 किताबें हैं। उसमें से एक लेटेस्ट किताब जो मेरी, जिसकी के लगारी साहब ने भी उसकी किया था लॉन्चिंग, लिटरेचर एंड साइंस वेयर लाइज द कॉन्ट्रडिक्शन। लिटरेचर एंड साइंस, और डॉक्टर जाफर ने भी किया था, लिटरेचर एंड साइंस वेयर लाइज द कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मैंने फिर एक उर्दू तर्जुमा भी किया, और वो ये है कि अदब और साइंस तजाद कहाँ, इस तजाद का आपको पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप आगे चल सकते हैं। इसके क्यों? क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन दे गो टुगेदर। अगर नजर साफ नहीं है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है? यही नजर साफ नहीं है तो आप जिहाद कर क्या सकते हैं? जिहाद में क्या कर सकते? ये है इस किताब का मौजू, जिस पर कई तरफ से इनामात भी मिले हैं। क्या बताऊं, बहुत कुछ मिला है। रूही को भेज देना चाहिए था जी, कैमरा ऑन में भी दिल सी नो नो नो। अगर निशात काज़मी साहब हैं वो आपके करीब निशात में काज़मी जो है, निशात काज़मी बहुत गैर मामूली हद तक ज़हीन है। एक बात, वो कबाना की प्रेसिडेंट है, और तीसरी बात कि शी इज ए वेरी गुड डिबेटर। उसको पहले बहुत गोल्ड मेडलिस्ट है वो इस मामले में, और इस वक्त अगर आप उससे बात करना चाहें तो आप बात करें। वो आपके बराबर में कुछ देर के लिए आके बैठी थी और फिर कुछ कह के चली गई, तो हम चाहेंगे कि वो आके फिर कुछ 1-2 मिनट के लिए बैठ जाएं आपके साथ, और अगर कुछ बातचीत हो जाए आपकी और उनकी साथ में। वो इस वक्फे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। फरमाइए फरमाइए। अल्लोबिया में मुन्ने जावेद बोल रहा हूँ। जावेद नकवी, आदाब। ये सबसे पहले तो जिन लोगों ने आपको ऐसा हसीन रखा है अभी तक, हमारी खाला को इतना उम्दा और फिट रखा है, उन कजिन्स को जो आपके भांजे भतीजे हैं, उनको मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और उनसे मोहब्बत करता हूँ। क्या रखा है, क्या अच्छा रखा है आपको, क्या उम्दा सजा के रखा है। दूसरी चीज, आपको सब, और सबसे सफ़े अव्वल में तो निशात अपनी, लेकिन मैं थोड़ा सा मुंह का मजा बदलना चाहता हूँ जोर साहब के हवाले से। आपके वालिद माजिद का जिक्र था उसमें, यादों की बारात में, और जिसमें कि उन्होंने एक ठुमरी गाई थी कि अकेली है रात सजन, अंधेरी है रात सजन, रहियो की जइयो। क्या बात है साहब। वो जो ट्रेन में वाकया है जोर साहब के साथ सफर करते हुए, जिसमें अस्करी साहब ठुमरी गा रहे थे, और उसके बोल उन्होंने जो लिखे हैं, अंधेरी है रात सजन रहियो की जइयो, उसका अंतरा आपको याद हो तो आप सुनाएं। जावेद साहब, अपना वीडियो अगर आप ऑन कर लेते तो क्या अच्छा होता। ओके, आई ट्राई। ये आ गए आप पर। हाँ, तो ये इस ठुमरी का जिक्र जो है जोर साहब ने इंटरव्यू में किया है, और डॉक्टर साहिबा मौजूद थी वहां। जी, वो उस ठुमरी का, अगर आपको कुछ उसके बोल याद है, वो असली जो बातें थे वो दूसरी थी। नयन दुई हमरे तुमरी ओर, ये असली वो दोनों मिलके गाते थे। अदील, वो उनका महबूब ठुमरी जो थी, नयन दुई हमरे तुमरी ओर, तुम तो चंदा जगत जियारे, हम बन बैठे चकोर, नयन दुई हमरे तुमरी ओर। हमरे तो अपने बेटे के लिए कहते थे,
हमरे तो तुम ही एक कह हो मेहदी, हम जैसी तुमरे करोड़, नयन दे हमरे तुम्हारी ओर। वाह वाह और वाह वाह वाह। फिर एक फारसी का जो सुनाते थे दोनों मिलके इकट्ठा, हाँ, रफ्तम ब मस्जिदे के बेबीनम जमाल दोस्त, ये महबूबा मेरी ऐसी रही है। ये हमेशा कहते थे हमारी महबूबा तो बस किस तरह की थी, क्या करें हम। रफ्तम ब मस्जिदे के बेबीनम जमाल दोस्त, दस्तक बरो कशीद द्वारा बहाना, क्या बात है। दस्तक बदोश गैर नेहादज रहे करम, मारा सुदीद लफ्ज़ पारा बहाना सा। और फिर आगे बढ़ते हुए दोनों अस्करी साहब और जोश साहब, फिर मेरा वदस फिराक तो खूने दिलस दीदाम, मेरा वदस फिराक तो खूने दिलस दीदाम, दजला बदजला यम बयम चश्म बचश्म जू बजू, अस्पे दीदने रुखत हम तो सवा फुतादाम। दोनों मिलके गाते थे, अस्पे दीदने रुखत हम तो सवा फुतादाम, खाने बखाने दर बदर कूचे बकूचे कू बकू। ये इस तरह से पूरी फिजा में वो छा जाते थे और इसके जरिए से वो एक मैसेज देते थे कि देखो मोहब्बत के ऊपर पाबंदी और कदगन नहीं लगाया जा सकता। ये था वो मैसेज जो मुख्तलिफ उन्वानात के तहत जोश साहब तारीख के हवाले कर रहे थे। आखिर में मैं फिर एक मरतबा ये जुमला कह रहा हूँ, आप अगर इजाजत दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज तमाम अहले खाना तो साथ हैं और जहां जहां तक ये आवाज पहुंच रही है और जिन लोगों को गुमान था या शक व शुबात थे, उन्हें यकीन की मंजिल में आ जाना चाहिए कि जो ने आपको तकरीर की शहजादी और बुलबुल पाकिस्तान का खिताब क्यों दिया था। आज आपको सुन के शायद हम सब मंजिल यकीन में पहुंच जाएं। आपकी इज्जत अफजाई है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबके लिए और आपकी जोश दोस्ती के लिए हमारे जो महबूब तरीन उनके कुछ मिसरे हैं और उसके बाद एक रुबाई और शायद इससे कुछ एक सवाल अगर मैं करूं। फरमाइए फरमाइए। बल्लू भैया ये बताइए कि जब जोश साहब पर पाबंदी लगी थी और ये पीरियड है जनरल ज़िया-उल-हक का कि जोश साहब का एक इंटरव्यू किया गया और उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि ये बादज़ मर्ग नशर होगा इंटरव्यू, उस हवाले से कभी जोश साहब से आपकी बात हुई तो उन्होंने यानी वो पूरा इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बहुत खुलकर बात की थी रेडियो पाकिस्तान के लिए किया गया था, लेकिन उस इंटरव्यू को पहले नशर किया गया और फिर उसी की बुनियाद पर उन पर पाबंदी लगाई गई। एक तो उसके बारे में कभी जोश साहब से आपकी बात हुई कि ये सारा हुआ क्या था। दूसरे ये कि जोश साहब और फैज साहब के दरमियान तनाव क्या था। देखिए इस सिलसिले में एक बात कहती चलूंगी। सईद नकवी ने बहुत खूबसूरत तरीके पर एक जुमला कहा है और हमेशा कहते हैं, अपने में और मुझ में न दे दखल गैर को। सियासी सतह पर, अदबी सतह पर, खानदानी सतह पर, अपने में और मुझ में न दे दखल गैर को, होते हैं फितना साज यही दरमिया के लोग। जोश और फैज के दरमियान उन लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने दूरी की मंजिल पर दोनों को एक से अलग कर दिया। आखिर में अपना एक जुमला दोहराऊं कि जोश साहब की बीवी बीमार थी, वो हॉस्पिटलाइज थी। मैंने फैज साहब के पास गई, मैंने कहा फैज साहब आपको मालूम है उनकी बीवी बीमार है, आपका फर्ज है कि आप चलिए। कहने लगे भाई हम जरूर चलेंगे, चलो तुम हमको लेके चलो। पहुंचे जोश साहब, अरे फैज साहब आप आए हमारी, अरे आप कैसे आ गए। एक मरतबा बर्फ पिघल गई। दूसरी मंजिल पर फैज साहब की लड़की के सलीमा की शादी थी। मैं गई जोश साहब के पास, उनकी बेटी की शादी, आप चलिए। साहब हमको तो बुलाया नहीं है। मैंने उनको एक कार्ड दिखाया, पहुंच गए।
फैज साहब ने कहा कि आपकी आमद से हमें जितनी खुशी है, नहीं साहब, हमें आपने बुलाया इसलिए हम बहुत खुश हैं। और ये कहते हुए नीचे आए, कहने लगे मेरा रुतबा इतना तो नहीं है कि आप मुझे नीचे तक पहुंचाए। कहने लगे जोश साहब, मैं आपका रुतबा आशना हूँ, लेकिन ऐसे बीच में बहुत से लोग होते हैं जो दूरी पैदा कर देते हैं। ये है किस्सा। ये दोनों इकट्ठा मिलने लगे, अपने में और मुझ में न दे दखल गैर को, होते हैं फितना साज यही दर। लेकिन अल्लू भैया वो जो इंटरव्यू था और उसके बाद जो पाबंदी लगी, उसके बाद कभी जोश साहब से बात हुई कि उन्होंने इस हवाले से क्या बात? वो भी समझ रहे थे कि ये साजिशों का एक नतीजा है मेरे खिलाफ, जो उन्होंने वो जो शेर कहा था कि जुर्म के दाइये तथीर अक्ल, ये पूरी एक फिजा उसके खिलाफ थी। जोश मुल्हिद है और ये है और वो है, उसके खिलाफ। फिर वो समझते थे, हदिया गहराई में जाके चीजों को जानते थे, तजिया कर सकते थे। उन्होंने वो दरअसल अदील वो एक मैदानी दरख्त थे, और मैदानी दरख्त झक्कड़ों को खातिर में नहीं लाता है, वो हमेशा लौ देता रहता है। उन्होंने झक्कड़ समझ के हटा दिया, वो झक्कड़ों के नफरत के झक्कड़ों को बाद सबा बना दिया उन्होंने, बात खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। मजहर अब्बास साहब, जिस तरफ आपका इशारा है उसका बहुत ही तफसील से जवाब जो है हबीब जालिब एक नज्म में दे गए अपनी। हाँ। तो ऐसे लोगों को जिया क्या लिखना और क्या उनकी बात करना, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है इसमें। ऐसे लोगों का नाम लाना जो है वो शायद इस गुफ्तगू को किसी शायद उस तरफ चली जाए, बदमजा कर देगी, बदमजा कर देगी। तो क्या अच्छा हो कि ये चार मिसरे हैं जोश साहब के। दानाए रमूज़े ईयों हूँ ए दोस्त, मौलाए अकाबरे जहां हूँ ए दोस्त, क्यों अहले नजर पढ़े ना मेरा कलमा, वाह वाह वाह, मैं शायरे आखिरुज़्ज़मा हूँ ए दोस्त। वाह वाह वाह। इसके बाद तो हमारे शायरे आखिरुज़्ज़मा, मैं शायरे और शायरे आखिरुज़्ज़मा के साथ बड़ी ज़्यादतियां हुई साहब, मुनाफिकत की बात हुई। डॉक्टर साहबा अगर इजाजत हो तो ये पसंदीदा तरीन कुछ मिसरे हैं। हाँ। कि कैसे कोई अजीज रिवायात छोड़ दे, वाह, कुछ खेल है कि कोहना हिकायात छोड़ दे, घुट्टी में जो थे हल वो ख्यालात छोड़ दे, माँ का मिजाज बाप की आदत छोड़ दे, किस जी से कोई रिश्ता ओहाम तोड़ दे, विरसे में जो मिले हैं वो असनाम तोड़ दे, ओहाम का रबाब कदामत का गुनू, फरसूदगी का सहर रिवायात का फसूं, अक़वाल का मिराक हिकायात का जुनू, रस्मों रिवाजों सोहबतों मीरासो नस्लो हूँ, अफसोस ये वो हल्का दामे ख्याल है जिससे बड़े बड़ों का निकलना महाल है। और शायद यही वजह है कि हम सब आज यहाँ वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अदील, ये इतनी तेज रफ्तार जिंदगी में जोश साहब का दिया जलाना और जलाए रखना, ये आपका ही कमाल है। ये जोश साहब का कमाल है, हम तो उनके चाहने वाले, उनके वो जो मैंने कहा था कि इरफान की मंजिल पर जब आदमी पहुंच जाता है तो वो अकीदत पे बदल जाता है। बिल्कुल। और फिर ये अकीदत हयात नौ देती है। जोश साहब का शेर सुन लीजिए और फरमाइए। जोश आजम की सदारत में पसो पेश न कर, वाह, जोश आजम की सदारत में पसो पेश न कर, जोश तो क़िबले रिंदान जहां है साथ। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जोश तो क़िबले रिंदान जहां है साकी, बस वो तो मोतियों के आंसुओं के दायरे में मोतियों की दुकान सजा रहे थे। बिल्कुल। वो तो नफरत के झक्कड़ों को मोहब्बत की बादे सबा बना रहे थे। जहल के रेगदार में इल्म की चांदनी छिटका रहे थे। यही जोश साहब का पैगाम है, और यही मैं आपके हवाले से तमाम अपने
دوستوں کو جو آپ کے امریکہ میں ہیں، امریکہ سے باہر ہیں، انہیں بھی جوش کے حوالے سے محبت کا خراج عقیدت برساتی ہوں. آپ نے مجھے عزت دی، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کچھ اس کے آگے پڑھ سکوں سوائے اس کے کہ پھلو پھولو بہاریں لوٹو دنیائے ترقی کی. الہی تم زمانے کے گلے کا ہار ہو جاؤ. بہت ڈاکٹر بڑی بڑی عنایت دعاؤں میں شامل رکھیں. آپ کا بے انتہا شکریہ. تمام اہل خانہ کی طرف سے ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ. مچل رہی ہے زر نگار سرخیاں، بڑھے چلو رواں دواں، بڑھے چلو کیا رواں بات ہے، دواں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مچل رہی ہے زر نگار سرخیاں، بڑھے چلو رواں دواں، بڑھے چلو. تمہارا دل رسول ہے. کیا جملہ آیا ہے. واہ واہ واہ. تمہارا دل رسول ہے، تمہارا ذہن الہ ہے. بس ایک نفس کی دیر ہے، بس ایک قدم کی دیر ہے. رواں دواں بڑھے چلو رواں دواں بڑھے چلو.